Yep, it started. So, good morning, everyone. Yeah, start. Good morning, everyone. I'm assuming that everyone has a lovely weather today in the different cities that you are in. Mumbai has a wonderful weather, and I'm hoping Delhi, Calcutta, everywhere it's a wonderful Sunday. So we are glad to welcome you all for the first edition of Brand Buzz in association with Surfaces Reporter and Ply Reporter. Brand Buzz is a popular section in the print magazine, in our print magazine, which hosts special people who are at the helm of affairs in leading companies and brands to a higher level. As we know, Century Ply is buzzing in the market today. SR&PR wants to know the factors behind the buzz as well as some market-related conversation with a young and talented leader in the wooden panel industry of India, Mr. Keshav Bhajanga. Mr. Keshav Bhajanga is the Executive Director of Century Plyboards Limited. He is a graduate from Warwick University, UK, and a country topper from the Cambridge School, Calcutta. He started his career as the director in charge of decorative business of Century Ply, headquartered in Kolkata, and has more than tripled the profits of the decorative verticals for the company. Keshav has been instrumental in development of numerous new product verticals such as exterior grade laminates, Vinlam laminates, medium density fiber board, amongst numerous others. Keshav's aim is to make Century Ply one of the India's top Fortune 500 companies by 2025. Welcoming Keshav. Thank you In so Ply much, Madhu. That was Reporter very and kind. Surfaces Reporter's brand buzz section. Most welcome, most welcome. So, in Ply Reporter and Surfaces Reporter's brand buzz section, Keshav Bhajanka will be in conversation with Pragat Divedi. Pragat Divedi is one of India's topmost journalists and publisher of wood panel and building materials news and market research. His chief areas of operations are predictions, forecasts, writing, consulting, and helping businesses to identify bottlenecks, scale up and grow through deep diving research and analysis. He is the director of Big C Marcom India Private Limited and founder editor of the Ply Reporter, Furniture Design Technology, and India Interior Retailing. And I am Madhurima Chaudhary. I'm the executive editor of Surfaces Reporter magazine. So over to Pragat to take the discussion forward. And later on, I will also join in for a few minutes to ask a few questions related to surface materials and the new technology that Century Ply has launched. So over to Pragatji to start the discussion. Thank you, Madhu, and most welcome, Mr. Keshav Bhajanka, here with the first show of Brand Buzz. One-to-one with Keshavji has been quite a interesting session I'm looking forward to. आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें करना चाहूँगा केशव जी से, क्योंकि जो हमारी वुड पैनल इंडस्ट्री की ऑडियंस है वो लार्जली माहेश्वरी, पटेल, मारवाड़ी कम्युनिटी को साथ लेते हुए पंजाब और एंटायर स्टेट है, लेकिन उसमें 80% लोग हिंदी से हैं और हमारा ये चैनल, हमारा ये ऑडियंस सेक्शन largely Hindi speaking है. So I would request Keshu ji, because I have received a lot of requests, to request you to speak a little more in Hindi, and that's how I welcome you today. Keshu ji, Thank you so much, Pragat ji. you are heading Century Ply and Laminate, and recently we are seeing a lot of happening on screen, on TV, with your latest launch, technological launch, ViroKill, which has created quite a buzz here. And today in this session, we'll be talking to you regarding how the market is evolving post-COVID, and this ViroKill, which you are going to kill the virus, already killing, how effective it is. But from beginning, I'm going to ask the question is, post unlock, यानी अनलॉक के बाद, कोविड तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अनलॉक के बाद रिकवरी काफी तेज देखी जा रही है. कई लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी रिकवरी है, मोर देन एक्सपेक्टेड है. प्लाईवुड लैमिनेट स्पेशली इस कैटेगरी में आपका क्या
सोचना है अब तक सेंचुरी प्लाई एंटायर कम्युनिटी ग्रुप ने क्या रिकवरी की है और लास्ट 2 महीने में आपने क्या महसूस किया है? So Pragat ji, firstly, thank you so much for having me here. देखिए, it depends on the perspective. It depends कि आप पहले क्या expect कर रहे थे. तो सेंचुरी में हमने जो देखा था और हमें जो लग रहा था कि फर्स्ट क्वार्टर प्रैक्टिकली वाइट वॉश होता, सेकेंड क्वार्टर में वी वर होपिंग कि हम लोग करीब 50% सेल तक वापस आ जाए, एंड थर्ड क्वार्टर से वी फेल्ट कि थोड़ी नॉर्मलसी आएगी, करीब 70-80% सेल. क्वार्टर 4 से वी वुड बी ऑन ट्रैक, जैसे अपने लास्ट ईयर कर रहे थे वही नंबर्स करेंगे. बट जैसे आप कहे, लाइक यू सेड, द रिकवरी हैज बीन बेटर. मतलब जो रिकवरी है ये हमारी सोच से तो काफी काफी ज्यादा बेटर रही है. हमने देखा है कि पिछले, जैसे मैं अप्रैल की एग्जांपल लूं, तो अप्रैल में वी वर एट 0. अप्रैल में प्रैक्टिकली कोई सेल थी. मई में वी हैड ऑलरेडी रीच 30%. जून वी वर बैक टू 60%. जुलाई वी वर टचिंग ऑलमोस्ट एट 80%. August we have been at 80% plus. So the recovery has been far better than expected. And मेरे को लगता है कि जो worst है that is over. अब आगे जाके improvement देखने मिलेगा month on month, and you will start seeing the economy as it was earlier. हम लोग जो रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अक्टूबर नवंबर तक अराउंड 70% कर रहे थे, लेकिन आपने अभी कहा कि अगस्त में आप 80% पे पहुंच गए. इसका मुख्य कारण क्या है? ये डिमांड आखिर आ कहां से रही है? क्या ये स्टॉकिंग हो रही है या ये जेन्युइन डिमांड है? और स्पेशली क्या ये सिर्फ सेंचुरी प्लाई के लिए है या ओवरऑल है? देखिए, इस बार मैं ये, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट इस बार मैं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये स्टॉकिंग डिमांड नहीं है. क्योंकि आप देखेंगे कि पेमेंट साइकिल में प्रॉब्लम्स काफी आई थी. तो अगर जेन्युइन डिमांड नहीं होता तो एक आदमी इस पॉइंट पे और क्रेडिट फंसा के स्टॉक करने में बिलीव नहीं करेगा. आप जानते हैं हमने कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दिया है, हमारी प्राइसिंग बिल्कुल जो पहले थी वही थी, हमने पुश सेल किया नहीं है. एंड जो हमने देखा है, पेमेंट्स हमें लगे थे कि थोड़े टाइट होंगे, लेकिन हमारी पेमेंट रिकवरी बहुत बढ़िया हुई है, एंड हमारे क्रेडिट नॉर्म्स के हिसाब से ही काम आगे बढ़ रहा है. तो जो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉकिंग है नहीं, ये जेन्युइन डिमांड है जो मार्केट से आ रही है. बिल्कुल कुछ सेगमेंट्स में डिमांड फार बेटर है. जैसे कि आप देखेंगे अप कंट्री मार्केट्स में डिमांड हैज बीन स्ट्रॉन्गर. जुलाई में बेटर था, अगस्त के फर्स्ट हाफ में बेटर था, एंड जो मेट्रोज हैं वहां थोड़ा डिमांड हिट हुआ है. आप देखेंगे तो कैलकाटा हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया. कैलकाटा एंड मुंबई में जैसे आपके लोकल ट्रेन हो गए, तो कैलकाटा में जो भी आपके कारीगर है, जो भी आपके कारपेंटर्स कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अप कंट्री मार्केट से शहर में आते हैं थ्रू लोकल ट्रेन. जैसे ही लोकल ट्रेन बंद हुए वैसे ही इनका आना जाना संभव नहीं रहा. तो इस वजह से आप देखेंगे कैलकाटा शहर में डिमांड बहुत हिट रहा है. मुंबई में परिस्थिति सेम है, बाकी शहरों में भी, बड़े शहरों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यही स्टेटस है. तो जब तक ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन सुधर नहीं जाता है, मेरे को लगता है कि यही स्टेटस चलेगा. लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट मंथ हमने शहरों में भी थोड़ा रिकवरी का, डिमांड की रिकवरी दिख रही थी. तो मुझे लगता है कि आगे जाके दोनों मार्केट अच्छा करेंगी, एंड अगर इसी हिसाब से चलते गया तो Q4 शुड बी बेटर देन लास्ट ईयर. ओह, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ इन Q4? यस, 100%. देखिए, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि Q4 तो एक्चुअली 3 महीने का था नहीं, 2.5 महीने का ही था हम लोगों के लिए. तो उस हिसाब से तो ग्रोथ 100% आएगा ही. लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर, मतलब Q4 ऑफ 2018-19, उससे भी हमें ग्रोथ मिलेगी, जो एक एक्चुअली फुल Q4 था. That means if we average out, you are expecting almost at par. नहीं, नॉट एट पार. जैसे आप फर्स्ट क्वार्टर देखेंगे तो 33% ही था. फर्स्ट क्वार्टर 1/3 था, तो वो काफी बड़ा हिट था. बट यस, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एट 80% प्लस फॉर द ईयर. That is still very promising and very optimistic figure. It will motivate and help entire trade कि अगर सेंचुरी के नंबर्स इतने अच्छे हैं तो क्या हर डीलर, हर डिस्ट्रीब्यूटर, क्या वो इसका शेयर ले रहा है? क्या वो इस ग्रोथ का हिस्सेदार है? मैं चाहता हूं और मैं समझूंगा कि आप सभी इसे मनन करें. केशव जी, अगला सवाल ये रहेगा कि इकोनॉमी के नंबर्स हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत दिक्कत में है, GDP -23 है, आने वाला समय बहुत टफ है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. ऐसे में क्या ये जो आज आप 80% डिमांड देख रहे हैं,
क्या ये सस्टेन्ड है? इनफैक्ट मे बी की सेंचुरी के लिए Q4 अच्छा हो, लेकिन क्या ये लगता है कि ये रियलिस्टिक जो नंबर्स आते हैं डोमेन में, उनको अगर देखें तो क्या ये सस्टेन्ड है? देखिए, डिमांड सडनली डिसअपियर तो करेगा नहीं। डिमांड जो मार्केट में है वो तो रहेगा ही। जो काम चल रहा था वो काम चलेगा। नए काम में थोड़ी देयर हैज बीन अ स्लो डाउन इन न्यू वर्क जो हमें दिख रहा है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जो क्वांटम ऑफ काम है वो बहुत बड़ा है। तो कुछ सेगमेंट्स अगर स्लो डाउन होते भी हैं, जिस आदमी को घर बनाना था वो घर बनाएगा। जिस आदमी को एक ऑफिस में रेनोवेशन करना था वो करेगा। नई ऑफिस बिल्डिंग आएगी कि नहीं इस पे डाउट है, नए होटल आएंगे कि नहीं इस पे डाउट है। लेकिन कुछ सेगमेंट्स पे हिट है, कुछ सेगमेंट्स बढ़ोतरी करेंगे। तो जो मेरे को दिख रहा है कि ये जो रिकवरी है ये सस्टेन्ड है। एंड जैसे मैंने आपको काफी बारी कहा है, वुड पैनल इंडस्ट्री को देखेंगे तो हम चाइना के 10% भी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन चाइना को टक्कर दे रही है। तो इस सेगमेंट में द ग्रोथ इज गोइंग टू बी सस्टेन्ड एंड इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर इयर्स टू कम। अब ये एक मुश्किल साल था, लेकिन जो मेरे को दिख रहा है डिफिकल्टी का जो पीरियड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब आगे जाके रिकवरी का फेज है। इसमें काफी जगहों से डीलर्स ने ये सवाल पूछा है, ट्रेड के लोगों ने सवाल पूछा है कि केशव जी से ये जरूर पूछना है कि अगर कॉमर्शियल स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस अपना रेलेवेंस अगले 1 साल में खो रहे हैं या नए स्पेसेस नहीं आ रहे हैं, तो जो ट्रेड के सेल्स नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगे और उनका इम्पैक्ट ट्रेड पर भी पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे काफी लोगों से बात हो रही है तो दो स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पे। एक कि वर्क फ्रॉम होम साबित हो गया है कि एक अच्छा मेथड है काम करने का। लेकिन हमारी ऑफिस 8 मई से ऑपरेशनल है। एंड अगर आज ये सेमिनार वीकडे पे होता तो मैं ऑफिस से ही ये कर रहा होता, क्योंकि ऑफिस में काम का एंड घर में काम का एक डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो जी जो बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि ऑफिस का कल्चर पूरा खत्म हो चुका है, मेरे को लगता है कि वो गलत है। ये एक शॉर्ट टर्म में फिनोमेना है। हाँ, एक शॉर्ट टर्म में हिट आएगी क्योंकि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ही हिट आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इंडिया में ऑफिस स्पेसेस का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहने वाला है। एंड आप नोटिस करेंगे कि काफी सेगमेंट्स ऐसे हैं, जैसे हॉस्पिटल। पहले जो क्लिनिक्स पे काम धीरे चल रहा था, अब वो क्लिनिक्स जिस पेस से तैयार हो रहे हैं, पहले घर पे रेनोवेशन जो 3 महीने में होते थे, अब आदमी कह रहे हैं कि 3 हफ्ते में वो रेनोवेशन करके आप जाइए। लेकिन वो रेनोवेशन जितना जल्दी हो सके करिए। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ऑफिस स्पेसेस का इतना बड़ा हिट आएगा। यस, शॉर्ट टर्म में थोड़ा हिट आएगा, लेकिन ये एक टेम्पररी फिनोमेनन होगा। यानी ऑडियंस को ये मैं कहना चाहूंगा, अब तक की समरी ये है लास्ट 3-4 सवालों की, कि सेंचुरी ने अच्छे नंबर्स किए हैं। आगे की उम्मीद, आगे की राह, आगे का सफर प्रॉमिसेस से भरा है। लाख मुसीबतें आए, कितनी भी मुश्किलें रही हैं, लेकिन मुश्किलों का समय लगता है कि धीरे धीरे पीछे जा रहा है और आने वाली रिकवरी पीछे से और बेहतर होगी। केशव जी ने अभी एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि यहां पर हॉस्पिटैलिटी यानी होटल्स वो भले कम हो जाएं, लेकिन हॉस्पिटल, हेल्थ केयर वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है। ऑफिसेस थोड़े समय के लिए जरूर हिट हो जाएं, लेकिन घर में ऑफिसेस बनने बंद नहीं होंगे। कहीं ना कहीं स्पेस तो चाहिए, ऑफिस का हो या घर का हो, इंटीरियर हर जगह होगा। और अगले कुछ सालों में वापस ऑफिस स्पेस अपनी उसी रेलिवेंस और चमक पर रहेगा, ऐसा केशव जी कहते हैं। और हमारे ट्रेड एक्सपर्ट्स भी, हमारे डीलर्स भी इस बात से सहमत हैं कि इंडिया की रिकवरी को कोई रोक नहीं सकता। चाइना की पॉपुलेशन के मुकाबले हम बराबरी पे खड़े हैं, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 10% है, यानी 50% भी पाएंगे तो मार्केट इज गोइंग टू बी अप। सो स्टे मोटिवेटेड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू केशव जी इज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी मैनिपुलेशन? क्योंकि आप प्लाईवुड लैमिनेट सेक्टर के मार्केट को अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। सेंचुरी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, और भी ब्रांडेड प्लेयर्स हैं जो एक क्वालिटी पैरामीटर्स की कैटेगरी को डिफाइन करके चलते हैं और उन पैरामीटर्स पे काम करते हैं। ये जो वेरिएशन है यानी क्वालिटी की मैनिपुलेशन है, इसका बाजार पर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? क्या आगे ये मैनिपुलेशन ऐसे ही चलता रहेगा, और क्या डीलर लोगों को उससे स्टे अवे करना चाहिए, क्या डिमोटिवेट करना चाहिए? आखिर इसकी राह क्या है?
देखिए, मैं इसको एक थोड़े थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से लेना चाहूँगा। आप एमडीएफ की ग्रोथ इंडिया में देखिए तो इट हैज़ बीन एक्सेप्शनल, बहुत बढ़िया ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों से। अब एमडीएफ की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से ये है कि जो पुअर क्वालिटी ऑफ प्लाईवुड कस्टमर्स को मिल रहा था, जो कस्टमर्स इससे सफर किए हैं, वो इमीडिएटली एमडीएफ जैसे प्रोडक्ट को देख के स्विच कर गए। तो क्वालिटी का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। क्वालिटी इज द हॉलमार्क ऑफ एनी प्रोडक्ट। जहां आपने खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, जहां आपने फॉल्स बीआई सर्टिफिकेशन देंगे, जहां आपने कस्टमर सूनर रादर देन लेटर इस प्रॉब्लम को फेस करेगा ही। जिस दिन फर्नीचर टूट पड़ता है उस दिन उस कस्टमर के ऊपर क्या बीतती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और पर्टिकुलरली घर के अंदर अगर एक पीस ऑफ फर्नीचर टूट जाता है तो वो पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। चाहे मैं आपके बेड के साइड टेबल ही बोलूं, बेड का साइड टेबल टूट गया तो आप अपना फोन कहाँ रखेंगे? तो आप रात को कोई किताब पढ़ते हैं, वो किताब कहाँ रखेंगे? आप अपने टीवी का रिमोट कहाँ रखेंगे? जिस कस्टमर ने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है उसने बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई रेक्टिफिकेशन, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना है, चाहे वो ब्रांडेड प्लाईवुड में जाके है या चाहे वो एमडीएफ का ब्रांडेड मटेरियल लेके है। तो आप देखेंगे कि ये जो जो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आदमी को मिलता है, ये सस्टेनेबल है नहीं। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके माल को सस्ते प्राइस में देके गलत क्लेम करके बिजनेस मॉडल वायबल है नहीं, एंड ये हमने बहुत बारी देखा है। और एमडीएफ जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, पार्टिकल बोर्ड जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, ये मेरे माइंड में एक क्लियर प्रूफ है कि आगे जाकर पुअर क्वालिटी लास्ट नहीं करेगा, आइदर वन वे और दी अदर। ये जो पूरा का पूरा मार्केट है इसमें रुकाव आएगा एंड क्वालिटी विल प्रिवेल। केशव जी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग एक बहुत खास बदलाव देखा है हमने लास्ट 10 इयर्स में कि बीआईएस का मैनिपुलेशन होता है और उसमें वाटरप्रूफ के नाम पर कमर्शियल माल बेचा जाता है या टिपिंग किया जाता है। इवन लैमिनेट्स में थिकनेस को अंडर थिकनेस किया जाता है। इसके ऊपर आपकी डीलरों के लिए सजेशन क्या है? या मार्केट के बिना सहमति के तो ये होता नहीं है और ये डेफिनेटली मार्जिन के लिए होता है। देखिए, आप कुछ कहना नहीं भी चाहेंगे, फिर भी हम चाहेंगे कि आप उनके भले के लिए अपनी बात जरूर कहें कि क्या मार्जिन पहले रखा जाए या फ्यूचर पहले रखा जाए? तो क्या मार्जिन जल्दी लेने से फ्यूचर खराब होता है? यानी क्या कस्टमर समझ पाता है कि मुझे डुप्लीकेट मिला या अंडर थिकनेस मिला? प्रगत जी, मैं इस पे डेफिनेटली कमेंट करना चाहूंगा, बट मैं एक थोड़े से अलग तरीके से कमेंट करना चाहूंगा। आज मैं एक 2 बेडरूम फ्लैट में रहता हूँ। मेरे घर की टोटल साइज है 4 बेडरूम हो गए, 2 मेरे पेरेंट्स के। टोटल घर का साइज है करीब 5000 स्क्वायर फीट। सेंचुरी के जो लार्ज डीलर्स हैं, मैं जब किसी डीलर के घर जाता हूँ डिनर के लिए, लंच के लिए, तो इतना प्राइड महसूस होता है कि 4 तल्ले की कोठी है, कुछ डीलर्स के घर में स्विमिंग पूल है, बाहर में मर्सिडीज खड़ी है। जो आदमी क्वालिटी से एसोसिएट करेगा, जो आदमी कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करके काम करेगा, उस आदमी की बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता है। हमारे कुछ बड़े डीलर्स आज के दिन अपने सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, अपने सोसाइटी में नाम पा चुके हैं। प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट है। वो एक ऐसी पोजीशन पे है जहां उन्हें रिस्पेक्ट हर साइड से मिलता है, क्योंकि वो क्वालिटी के साथ जुड़े हैं। एंड ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, पिछले 20 साल से 30 साल से ये ग्रो कर रहे हैं। सालाना उनकी कमाई बढ़ रही है, सालाना प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आज जो आदमी क्वालिटी के साथ जुड़ेगा उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट 100% मिलेगा। एंड जब हम इनसे मिलते हैं, जब उनके चेहरे पे स्माइल आते, जब वो बोलते हैं कि सर हम सेंचुरी प्लाईवुड है अपने शहर में, तो जो फकर एक प्राइड उनमें दिखता है ना, वो बताता है कि हम सही ट्रैक पे हैं। बहुत अच्छा। ये जो क्वालिटी के ऊपर आपने अलग से बात कही कि क्वालिटी नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। भले शॉर्ट टर्म में आप गेन कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नाम, ये पद, ये प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ऐसा आपने अपने अनुभव से देखा है। पीछे हम, केशव जी, बहुत सारा आपका प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं, हर चैनल पे वायरोकिल आ रहा है। ये वायरोकिल
क्या है और ऐसा क्या कर दिया आपने कि वायरोकिल सुना जा रहा है? वायरोकिल है क्या? क्या ये वायरस को पूरी तरह खत्म कर देगा? देखिए, हमारी कंपनी 3 प्रिंसिपल पे फाउंडेड है। सबसे पहला, जैसा आप जानते हैं और मैं बार-बार कह चुका हूँ, क्वालिटी। दूसरा, इंटेग्रिटी। तीसरा, ट्रस्ट। जो हम क्लेम करते हैं सिंस डे 1, वो हम डिलीवर करते हैं। वायरोकिल इसलिए ये सोच स्टार्ट हुई क्योंकि फरवरी में इनिशियली किसी को लगा नहीं था कोरोना इतना बड़ा एक इशू बन जाएगा। लेकिन हमारी रिसर्च टीम, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो रिसर्च टीम में है, वो हमें कहते हैं कि ये इशू बनेगा एंड इससे प्रॉब्लम आएगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसी ने नहीं सोची थी, बट सबको लगा कि एक इशू बनेगा कस्टमर के लिए। सेंचुरी ने हमेशा कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक डेडिकेशन लिया है। हमने ट्राई किया है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज कि हम कोई सोल्यूशन ढूंढ के लाएं। तो 97 में आपको याद है, आपने ही पहली बार कवर किया था कि हमने बोरो प्रूफ टर्माइट प्रूफ प्लाईवुड लाया था एंड एक ऐसा प्रोडक्ट लाया था जो इंडिया ने देखा नहीं था। इस बार भी हमने एक ठान ली कि हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे जिससे हम कस्टमर को कुछ बेनिफिट दे पाए। अब वायरोकिल टेक्नोलॉजी एक नैनो पार्टिकल बेस्ड सेल्फ डॉक्टरिंग सर्फेस ट्रीटमेंट है। ये हमारे प्रोडक्ट में इम्बाइब्ड है। ये कोई ऊपर से एक कोट या एक वार्निश लगा दिया वैसा नहीं है। ये प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी हमने जोड़ दी है एंड इससे कोई भी वायरस जब हमारे प्रोडक्ट के सरफेस पे गिरता है तो उसके सेल के वॉल्स रप्चर होते हैं एंड वो मरना शुरू हो जाता है। तो ये क्लेम हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि खुद के क्लेम से अच्छा इंडिया के सबसे रेप्यूटेड लैब से हम इसका टेस्टिंग कराते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमने अप्रैल से मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जून में हमारे पास रिजल्ट आया फ्रॉम द बायोटेक टेस्टिंग सर्विस, व्हिच इज इंडिया नंबर 1 लेबोरेटरी फॉर मटेरियल टेस्टिंग प्रॉपर्टीज। तो हमारा प्रोडक्ट मटेरियल हो गया, तो मटेरियल टेस्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए दे आर द फॉरमोस्ट। तो हमें लग रहा था कि हमें एटलीस्ट 99% का क्लेम आ जाएगा कि 99% हम एंटीवायरल है, लेकिन बायोटेक ने कहा नहीं, आप 99.99% एंटीवायरल। जब वायरस गिरेगा खत्म हो जाएगा आपके प्रोडक्ट पे। तो वायरोकिल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी वायरस जैसे हमारे प्रोडक्ट की सरफेस को छूता है, चाहे वो प्लाईवुड हो चाहे लैमिनेट हो, इंस्टेंटली उसके सेल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं एंड वो वायरस मरना शुरू हो जाता है। एंड हमारे कस्टमर्स के लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिट है ही, बट मैं हमारे रिटेलर भाइयों से, हमारे डीलर भाइयों से, हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों से, आर्किटेक्ट भाइयों सबसे कहना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट आपकी सेफ्टी में भी हेल्प करेगा। एंड इस प्रोडक्ट we are very proud. Senchi Plywood is the first company in India and perhaps the first company in the world that has come up with this technology. बहुत अच्छा। आपकी बात का समर्थन करते हुए बहुत सारे डीलर लोग अपनी बात लिख भी रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। केशव जी, वायरोकिल, एक सज्जन अभी लिख रहे हैं कि केशव जी क्या जो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट हैं उसको लोग लगा रहे हैं, उससे वायरोकिल को खत्म करना चाह रहे हैं, वायरस को खत्म करना चाह रहे हैं, तो क्या आपका वायरोकिल लगाने से डिसइंफेक्टेंट का रोल खत्म हो जाएगा? क्या जरूरत नहीं पड़ेगी? आपके लैमिनेट, आपके प्लाईवुड लगाने से क्या डिसइंफेक्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है? ये किसी ने सवाल पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन डिसइंफेक्टेंट का रोल क्या है? वायरस को खत्म करना। दैट इज द सिंपल रोल दैट इट डिसइंफेक्टेंट प्लेज। सेंचुरी प्लाई या सेंचुरी लैमिनेट के सरफेस पे वायरस लास्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर, इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिसइंफेक्टेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि जो आने वाले समय में हेल्थ केयर एरियाज हैं वहां पर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी इफेक्टिव रहेंगे। 100%। देखिए, ये प्रोडक्ट इनिशियली जो हमने डेवलप किया था, तो इस प्रोडक्ट की एक कॉस्ट है। तो हमने पहले सोचा था कि हम ये ज्यादातर मेडिकल फ्रेटर्निटी में यूज करेंगे, बट आप हमारे चेयरमैन को जानते हैं, तो चेयरमैन ने कहा कि जो भी कॉस्ट है वो कंपनी सहेगी, ये प्रोडक्ट हम अपने हर एक कस्टमर को ऑफर करेंगे। तो इनिशियली वायरोकिल स्पेशलाइज्ड होने वाली थी प्रोडक्ट कैटेगरी की तरह, बट द चेयरमैन हैज मैंडेटेड कि सेंचुरी हर एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है उस पर आप वायरोकिल देंगे। हर आदमी के घर को जितना सेफ अपने बना सकते हैं अपने बनाएंगे।
तो क्या ये इसका प्राइस अलग से नहीं है, ये सेम प्राइस है? आई मीन इसका कोई आपने अलग से प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं इस फीचर का? कॉस्ट अलग से है लेकिन प्राइस अलग से नहीं है. इट इज द सेम प्राइस एज हमारे हर प्रोडक्ट में अब वायरोकिल जा रहा है, और हमारे लैमिनेट की प्राइस, प्लाईवुड की प्राइस जो पहले थी बिल्कुल वही है. 1 रुपया भी दाम बढ़ा नहीं है. अब मेरा एक सवाल है छोटा सा टेक्निकल की, जैसे लैमिनेट पहले से एंटीबैक्टीरियल था और एंटीबैक्टीरियल पहले से उसमें कुछ ट्रीटमेंट या कोई कोटिंग या कोई फिल्म लगी थी जो उसे एंटीबैक्टीरियल बनाती थी, और अब एंटीवायरल भी हो गया आपका प्रोडक्ट. तो क्या एक ही प्रोडक्ट में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल दोनों चीजें रह सकती हैं या रहती हैं? देखिए क्या है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो साथ में कोएग्जिस्ट कर पाते हैं. तो हमने जो नैनो टेक्नोलॉजी पहले यूज की थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थे. उस समय हमारा प्राइम एक्चुअली फोकस था फंगस को कैसे लड़ा जाए, एंड उसी के साथ साथ में बैक्टीरियल आया. अब हमारी डेवलपमेंटल टीम ने इसके अंदर और एडिशंस करके नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस ऐसे किया है कि उसमें एनी माइक्रोब विच इंक्लूड्स वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस विल बी किल्ड. तो जो सेम टेक्नोलॉजी है दैट has been changed and modified to include a new property. And extensive research के बाद, क्योंकि initially जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम होता था कि एक चीज को खत्म करने के चक्कर में दूसरा इफेक्ट कम पड़ जाएगा, बट आफ्टर अबाउट 1 month ऑफ आइट्रेशन फाइनली ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर पाए जिसमें ये प्रोडक्ट एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है. Congratulations, Keshavji, and entire Century Ply technical team for developing a relevant and testing product जो आज के समय में बहुत उपयोगी है. आज की ब्रांड बज में केशव जी के साथ 1-to-1 में कुछ बातें सामने बहुत खुल के आ रही हैं कि क्वालिटी को लेना, क्वालिटी को बनाना और क्वालिटी को प्रमोट करना ही सस्टेनेबल बिजनेस है. शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म पेन बनेगा, और सेंचुरी इस दिशा में काफी इनोवेशन करती रहती है, जिसकी वजह से आपने 97-98 में बोरर प्रूफ, इसके बाद मुझे अभी भी याद है कि आपने एक GLP लॉन्च किया था, ग्लू लाइन प्रोटेक्शन, which was somewhere around 2006-07, and it was it created a wave, and I think this is a third in row where you've done something with Virokill. So congratulations on Virokill. Madhu, there is Madhu, associate editor of Surfaces. आपकी मेमोरी मेरे से काफी बेटर है लगता है. नहीं, मुझे ये लगता है कि मुझे अभी भी याद है, being a magazine in this trade, we have seen the journey, how effectively you people have launched and promoted and created an awareness among the trade. That is the big part. बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन इस लेवल की अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाते. Congratulations for this effort. I am seeing such a massive campaign on entire channel and electronic media, जिसकी वजह से हमें भी ये लगा कि आज हम आपसे पूछें कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसका इंटेंट क्या है. आई होप कि हमारे ऑडियंस इस चीज को समझ पाएंगे, समझ पा रहे हैं और इसकी कद्र करेंगे. Madhu, are you there from Surfaces? If you have any questions from architect side, designer fraternity, because Madhu represent designer community. Madhu, आपके पास कोई सवाल है जो लगे तो आप पूछ सकते हैं. मटेरियल सेंट्रिक मैगजीन है Surfaces. Sure. I did have a couple of queries, but I think Keshav has pretty much covered everything. So from this, I understand, first of all, congratulations. It seems like a wonderful product and very, very relevant at this moment. And so you said that you are using the same nanotechnology and you have incorporated antiviral in the antibacterial and this thing. So that is one thing. The price, you said it's not going to change. There's a cost attached, but Century is willing to offer this product at the same price levels. My question is, it's a wonderful product, but how long does this effect last? Does it last for a lifetime, or is there anything that people have to do? Madhuji, we have developed the product. We have incorporated this technology in the manufacturing process. तो जैसे आप जानते हैं, we try कि Century Ply आपकी lifetime के लिए चले, and we are very happy to say that Virokill जब तक Century Ply चलेगा तब तक चलेगा. It is ingrained in the product characteristics. It will last for the lifetime of the product. Super. And will it be available in all your products?
this technology? It is as of now available in our plywood and in our laminates, but जैसे प्रगत जी मेरे को already पूछ चुके हैं on a personal note, but very soon it will be available in all our products. Great. I think pretty much covered. If I have any queries, I think I will send it to you, and we can have a one-to-one chat around it as well. Thank you, Keshav. Thank you, Madhu from Surfaces. And here again, back with all the audience. Century Ply has been based on integrity, quality, और तीसरा क्या था सर? ट्रस्ट. ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक इतना वेग वर्ड है. हम सभी एक दूसरे पे कहते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है बाजार में ट्रस्ट तोड़ने में 1 मिनट लगता है. ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है क्या? कैसे ट्रस्ट बनाते हैं आपके यहाँ? इस कंपनी में ऐसी क्या चीज है जिसे आप लगता है कि ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट का कोई फॉर्मूला तो है नहीं. आपने अपनी जर्नी में ट्रस्ट को बनते हुए कैसे देखा है? आप कैसे इसे आसान वर्ड्स में बता सकते हैं कि ऐसे ट्रस्ट बना सकते हो? बहुत ट्रिकी सवाल है, लेकिन बहुत आसान है. ये मेरे हिसाब से तो सबसे आसान सवाल है. मैं आपको रीजन बताता हूँ. चेयरमैन मेरे फादर ने जब मैं ज्वाइन किया था एक चीज कहा था कि बेटा जमान की वैल्यू समझो. एक बार एक कमिटमेंट दे दिया तो बाकी जो हो वो कमिटमेंट को तुमको निभाना है. तो सेंचुरी प्लाई में हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि एक बार कमिटमेंट दे दिया वो कमिटमेंट को हम फुलफिल करके ही छोड़ेंगे. तो फॉर अस दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट. जो आपने, चाहे कस्टमर हो, चाहे वो अपने पार्टनर्स हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, चाहे हमारे सप्लायर्स हो, चाहे हमारे लोकल कम्युनिटी में जो सपोर्ट सिस्टम हो, एक बार आपने एक कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट को आप अपहोल्ड करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो हमारे काफ़ी सारे सप्लायर्स हमारे पास आए कि सर हम समझ रहे हैं कि पेमेंट थोड़ा डिले होगा, बट प्लीज़ 30 दिन से ज़्यादा डिले मत करिएगा क्योंकि हमारे वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम आएगा, हम लेबर को पेमेंट नहीं दे पाएंगे, एक्सेट्रा. तो हमारे CFO चेयरमैन के पास गए, बोले कि सर रिक्वेस्ट आया है कि 30 दिन से ज़्यादा डिले नहीं करेंगे पेमेंट. तो पापा बोले कि 30 मिनट क्यों डिले होगा? जिस दिन पेमेंट ड्यू था उस दिन हर एक पेमेंट को क्लियर करो. तो आज एक बार हमारी कंपनी ने कमिटमेंट दे दिया है, हम उसे निभाएंगे चाहे जो आ जाए. Wonderful. You have got quite a history, legacy and culture here, building the trust. केशव जी, कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा. ये बताइए कि आप इतना अच्छा बोलते कैसे हैं? सोच के बोलते हैं या ये एजुकेशन का कमाल है? देखिए, मैं ऑनेस्टली कहूँ, जब आपकी कन्विक्शन है, क्या होता है ना, जब आदमी कुछ सोच के बना के बोलना चाहता है तो एक बार, 2 बार, 3 बार तो वो कह लेगा, चौथी बार फंसेगा ही. जब जो आप बोल रहे हैं उस पर आपका कन्विक्शन है, तब वो बोलना बहुत इजी हो जाता है. तो चाहे आज अपने बात करें या जैसे अपने 2 हफ्ते पहले फोन पे बात कर रहे थे या अपने 3 महीने बाद भी बात करेंगे, तो वेयर यू हैव दैट कन्विक्शन, तो उसको बोलना बहुत इजी हो जाता है. आपका हमारे ट्रेड के डीलरों के लिए, खासकर रिटेल काउंटर के लिए सजेशन क्या है? रिटेल काउंटर्स के लिए पर्टिकुलरली, नॉट फॉर द ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, योर सजेशन इन कोविड टाइम, डीलरों के लिए, रिटेलरों के लिए सजेशन क्या है? देखिए, मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी, बहुत लोगों के लिए ये लाइफ में पहली बार हुआ है. तो जब मैं अपने पापा से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि एक बार असम में हुआ था पहले, जब चाइना इंक्रोच कर रहा था, तो उस समय लॉकडाउन का पूरा परिस्थिति था, एंड दे हैव सीन इट, बट इन माय लाइफ टाइम, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. हमें एक चीज याद रखना है कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेनन है. दिस इज नॉट फॉर लाइफ. हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आता है. बड़ी तेजी से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बड़ी तेजी से जो वैक्सीन का डेवलपमेंट का काम हो रहा है ये सक्सेसफुल होगा. सारे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दिसंबर तक अपने पास एक वैक्सीन आएगा, एंड वैक्सीन एक बार अपने पॉपुलेशन के पास पहुंच गया तो उसके बाद वही घोड़ा वही मैदान. तो अभी एक साल डिफिकल्टी है. मैं मार्च से लेके मार्च तक चल रहा हूँ कि अगले मार्च तक अपने पास डिफिकल्टी आएगी, लेकिन हमें इसमें हौसला नहीं खोना है.
आगे जाके इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप देखिए कि चाइना से हम अभी 1/10 पे हैं, और चाइना और हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। आगे जाके हम ये 1/10 को 1/4 करेंगे, 1/4 को हाफ करेंगे, और फिर उनके बराबर में आएंगे। तो इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, वी आर ऑल गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। यस, शॉर्ट टर्म में जितने भी अपने कॉस्ट कटिंग मेजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में जितना भी हम कैश को इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी देके कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। बट 6 महीने बाद ये भी गुजरेगा, और वापस जो ग्रोथ का वो एक पूरा एटमोस्फियर था वो वापस चालू होगा। तो रिटेलरों के लिए आपका आंसर ये है कि ये खराब समय जाने वाला है, 6 महीने 5 महीने, तब तक आप बैलेंस होके चलें, लेकिन ये एंड नहीं है, ग्रोथ अभी आनी बाकी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। चाइना का एग्जांपल हमारे सामने है, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दैट whether we want it or not, but it is inevitable. That is what you meant today, Keshav ji, right? One more very curious question. बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके बच्चे ज्वाइन करते हैं, बहुत सारों ने 3-4 साल पहले ज्वाइन किया, कई लोग आपको सुनते हैं, कई लोग और भी एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं। उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो अभी दहलीज पे खड़े हैं, उनको तो सिर्फ ये लगता है कि जल्दी से पैसा बना ले तो, और जल्दी से अर्निंग कर ले, जल्दी से वॉल्यूम बढ़ा ले। उनके लिए सजेशन क्या है? क्या ये सोच यही होनी चाहिए, या इसके साथ और भी कोई एडवाइस देंगे आप? Those youngsters. मेरे मेंटर, हमारे एमडी मिस्टर संजय अग्रवाल, एक बार मैं एक गलत बिजनेस डिसीजन ले दिया था। क्या डिसीजन था मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा कहानी है, बट एंड में उनके पास एकदम डर के गया था, लिटरली कांप रहा था, क्योंकि करीब 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया था वो पूरे डिसीजन के पीछे। तो मैं उनके पास गया एकदम कांपते हुए, मैं बोला कि अंकल जी देखिए ये हो गया है। तो मुझे लगा कि जब मैं ज्वाइन किया था उसके करीब 6 महीने 1 साल बाद की बात है, तो मुझे लगा था कि काफी मेरे को डांट पड़ेगी, काफी मुझे सुनने को पड़ेगा। तो उन्हें मुझे देखा और बोला कि बेटा जी, तुम जिस दिन डिसीजन दिए थे उस दिन ये सक्सेस होने का लाइक्लीहुड था? बोला हाँ बिल्कुल, इसीलिए लिया था। तो बोले कि फिर जब तक फेल नहीं करोगे तब तक सक्सीड कहाँ कर पाओगे? तो अपने बहुत सस्ते में छूटे हैं। यू नीड टू फेल टू सक्सीड। सो हार की डर को कभी भी एक रुकावट नहीं बनना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, कहीं हारेंगे कहीं सक्सेसफुल होंगे, जितनी बार हारेंगे उतनी बार सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ेगा। तो ये लेसन मेरे को दिया गया था ना। आई थिंक हर एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत जरूरी लेसन है कि डरिए मत, हार भी होगी जीत भी होगी, तो हार को भी उसी स्पिरिट में लेके चलिए जिसमें जीत को लेके चलना चाहिए। आज हमारे हजारों व्यूअर्स को ये बहुत सुंदर मैसेज है। एक, कि आप कभी थकिए मत, क्वालिटी के पीछे पड़े रहिए, दिल लगा के पड़े रहिए, अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखिए कि क्वालिटी ही चलेगी। दूसरा, नेवर स्टॉप ट्राइंग, वेदर यू आर गोइंग टू लूज और नॉट, यू विल लर्न इफ यू लूज, इफ यू डोंट लूज यू आर गोइंग टू अर्न। केशव जी, आज का सेशन बहुत डिफरेंट था। अब तक हम हर महीने हर संडे हम लोग वेबिनार करते आए हैं, लेकिन आज का ये बिगिनिंग ब्रांड बज का आपके साथ एक शुभ शुरुआत है, और इसमें 3-4 पॉइंटर्स जो निकल कर आए हैं वो यही है कि सेंचुरी का जो ये वायरोकिल प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, ये लाइफ टाइम सस्टेन करेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर एक खासियत ये है कि इसके बाद इसके एप्लीकेशन के बाद बहुत ज्यादा डिसइंफेक्टेंट की जरूरत नहीं है। वायरस विल बी removed automatically because of the nanotechnology. Second is trust has to be there. If you're building your company on the basis of integrity, on the basis of honesty, on the basis of quality, you are going to earn a lot in long term. Reputation, wealth and image. केशव जी ने एक चीज और कही खास, कि अगर आप कन्विक्शन में पक्के हैं और ट्रूथफुल हैं, जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं, तो आप अपने आप अच्छा बोलने लगते हैं या रिलेवेंट बोलने लगते हैं। केशव जी, आज के इन शब्दों के साथ, सेशंस के साथ मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि आपने कम उम्र में
अपने आप को काफी इवॉल्व कराया है और हम आपको देखते आ रहे हैं पिछले 7-8 सालों से. Congratulations to you. Congratulations to entire Century Group management for creating such young talents like you. And anything that you would like to share with the entire industry, trade, and even with the Ply Reporter and Surfaces, I would give you a few moments to talk on that. Okay, I would like to say one thing, Pragat ji, that thank you so much for this wonderful platform. आज आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि क्या है कि बहुत मुश्किल होता है टू कनेक्ट एंड रीच आउट टू पीपल, पर्टिकुलरली फ्रॉम आवर ट्रेड. सब काफ़ी बिजी रहते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. एंड मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, द कंट्री हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, एंड ये ऑप्टिमिज्म हमें हमेशा साथ रखना चाहिए. आगे जाके इंडिया विल बी सक्सेसफुल एंड आई होप ऑल ऑफ अस प्रॉस्पर विद इट. एक सवाल मिस हो गया है जो बहुत जरूरी है. किसी ने पूछा है कि अगर MDF बेटर है तो प्लाईवुड की जरूरत क्या है? देखिए, MDF is a good product. It is a very good product, but it can never replace plywood. आज plywood की जो inherent strength है, the durability of plywood is something that MDF cannot match. अगर आप चाइना भी देखेंगे, चाइना का एग्जांपल, चाइना is the world's largest manufacturer of MDF, and they have been the world's largest manufacturer of MDF for the past 14 years. लेकिन चाइना में plywood manufacturing is more than 2.5 times that of MDF. The quality of plywood is superior, but yes, MDF is a good alternate because the price point is lower. तो जो आदमी plywood afford नहीं कर सकता है, उसके लिए MDF is a good option. Thank you, Keshu ji. We have seen all the questions. Ask some of the question today's 40-minute session में. केशव जी के साथ आज के ब्रांड बज में इतना ही. सभी ऑडियंस को यहाँ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज प्लाई रिपोर्टर और सर्फेसेस की इस नए इनिशिएटिव में एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप ब्रांड्स के द्वारा किए जा रहे नए प्रयासों को जान सकें, उसे अपने ट्रेड में अपना सकें, कुछ लीडर्स के लर्निंग्स को, उनके लाइफ के लर्निंग लेसन्स को अपने जीवन में उतार सकें और बिजनेस की राह में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट और क्वालिटी के साथ आगे बढ़ें. बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी संडे के ब्रांड बज सेशन में. एंड आई होप एनी ऑडियंस who have any question for this related to Century Ply, that will be sent to Mr. Keshav directly or we will be forwarding it to. So आज जिसका भी क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, they can remind us and we will be asking that again and serve the answers. You can also watch this session on our website. At the same time, it will also be covered in an interview session in our magazine. It will be printed in a magazine. So those who have missed will be seeing there. Thank you, Mr. Keshav, for being with us. So much, Madhu. Thank you so much, Madhu. Thank you. Surfaces. Bye, all the audience. Thank you. सभी ऑडियंस को आज के इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद. केशव जी से बात करके एक चीज समझ में आती है, अगर आप ऑब्जेक्टिव में क्लियर हैं, अगर आपका फोकस क्लियर है, आप कुछ भी कर सकते हैं. आज इस प्रोडक्ट में जहां पर कि वायरस से हम सभी लड़ रहे हैं और एक एश्योरेंस है, एक होप है कि इससे नहीं होगा या ये ऑटोमेटिक किल करेगा, ये डेफिनेटली प्रीफर करेगा. दिस काइंड ऑफ इनोवेशन we all can bring in our product category every time if we learn. Ply Reporter will continue to serve you good content, continue to bring people on board, and we will continue to ask questions as a true media for this trade. Thank you for being with us on this Sunday in Brand Buzz. Thank you all the audience. Thank you all dealers. Thank you all manufacturers, and thank you all the followers of Ply Reporter and Surfaces. Bye-bye. See you all next Sunday.